Okay, so in our last lecture of business law under the chapter Sale of Goods Act 1930, we have learned regarding the term conditions and warranties. And after that, we have learned regarding the concept of implied conditions. As far as conditions are concerned, conditions are some very important stipulations which has taken place between buyer and seller. कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीजें खरीदने जाते हैं तो सेलर हमें कई तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी देता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और उस सेलर के बातों के ऊपर भरोसा करके हम वो चीजें खरीद लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि वो कह रहा है या जो चीज हमें बता रहा है या दिखा रहा है वो चीज 100% जेन्युइन है, करेक्ट है और हमारा डिसीजन रॉन्ग नहीं है। पर आगे चल के अगर पता चला that whatever he was saying that is not 100% right, whatever information he has given that was a false information, then that condition or that stipulation is considered as a breach, because those particular statements have turned out false. So that is considered as the breach of conditions, right? उसने अपने promises को तोड़ दिया आपको क्योंकि उसने झूठ बोला था. So that particular breach of conditions are giving you the right to return the material and to ask for the refund, and nobody can stop you. That is your right, and that is 100% correct thing also. If somebody is giving you false information just to induce you that you have to purchase that particular thing, and later on if you found that the things are not 100% right, then you are having the right to return that. That is called as condition. Then we have discussed regarding the implied conditions, मतलब ऐसी चीजें जो शायद बातचीत करने के टाइम पे वो आया भी नहीं, राइट? लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये ऐसा, my screen, at least you can see the word, some word is written, one word is written. I hope able to see that because still I have not started the slideshow now. Okay. So here the implied conditions means the things which has not been discussed between buyer and seller, but still it is considered that these things are there. ऐसी चीजें जिसके बारे में आपने डिस्कस नहीं किया पर ऐसा माना जाता है कि वो अंडरस्टूड चीजें हैं, वो होता ही है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं। जैसे जो दुकानदार चीजें बेच रहा है तो वो उसका ओनर ही होगा ना, तभी तो वो चीजें बेच रहा है, उसको अधिकार है चीजें बेचने का। तो हम किसी दुकान वाले को ये नहीं पूछते कि भाई चोरी का माल तो नहीं है ना, ये तुम्हारा ही माल है ना जो बेच रहे हो, कभी नहीं पूछते। दैट इज अ इम्प्लाइड कंडीशन, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये होती है इम्प्लाइड कंडीशन। सो वी हैव लर्न दैट अ बायर इज हैविंग सो मेनी राइट्स। बायर के पास बहुत सारे राइट्स हैं अपनी चीजों को रिटर्न करने का और अपना क्लेम वापस करने का, डैमेजेस क्लेम करने का। अगर सेलर नहीं मान रहा है तो आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं, तो कोर्ट का भी जितना खर्चा होगा ना वो भी आप भर के ले सकते हैं। अगर आप छुट्टी लेके जाते हो तो आपका सैलरी कटा होगा, आपने ट्रैवल किया, ओके, आपका और भी नुकसान हुआ, आपने लॉयर को फीस दिया, आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर खर्चा किया, ये सब खर्चा भी आप सेलर से वसूल कर सकते हो, ये इतना भी आपको राइट दिया। तो when the act is giving you so many rights, right, so many privileges have been given to you, along with that the act has given you one very important responsibility. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो आपको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे। Once again I repeat, if the responsibility whatever has been given to you by the act, if you are not fulfilling those obligations, you are not eligible to enjoy the benefits or the privileges which has been given to the buyer. And what are these responsibilities? That is this word. The word is given as CAVEATEMPTOR. अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ध्यान से सुनना है। कैविएट, कैविएट, एम्प्टोर, कैविएट, एम्प्टोर, caveat, emptor. The P is silent, right? I hope you understood how to pronounce this word. This word
is a Latin word, and this word is having the meaning that when a customer is purchasing any goods, it is the job of the customer or buyer to be very careful when he is purchasing. So what the meaning is we have over here, let me take you to that particular part. Caveat emptor does not mean that the buyer must take chance. It simply means that he must take care, and it implies that the purchase of specific goods must exercise his own judgment. That means when you are purchasing anything, you need to be very, very careful. You have to see that if the goods are specific goods means when the goods are readily available at the time of sale or purchase, you have to apply your own mind. You have to see that the things are in order, there is no defect, there is no damage happened to the product, and that is your job. If after purchasing later on you come to know, अरे ये तो पीस खराब था, ये मोबाइल फोन का तो ये पर्टिकुलर जो पिन है वो काम नहीं कर रहा है या अच्छा नहीं है, वो आपको देख के लेना था. आप एक बार वहां से खरीद के घर पे आ गए, उसके बाद आप फिर से दुकान में जाएंगे, अरे तो तूने मुझे टूटी हुई चीज दे दी. तो दुकानदार साफ साफ बोलेगा, सर मैंने आपको दिखाया था ना, चीज आपके सामने रखा था, आपने तो उसको चेक भी किया, आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, उस टाइम पे आपने देख के लिया, अभी आप क्यों बोल रहे हो सकता है आपने घर पे तोड़ा होगा, मैं तो नहीं देने वाला. बोल सकता है और उससे पूरा अधिकार है, बिकॉज दैट इज कैविएट एम्प्टर. So when you are purchasing any goods from anyone, be very careful. That is the meaning of caveat emptor. Caveat emptor. Now here again we are having one more meaning. It says that the doctrine of caveat emptor implies that the person who buys goods must keep his eyes open, his mind active, and cautious while buying the goods. You have to be very careful. You see the goods very carefully, whatever you are purchasing. Keep your mind active. ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए खरीदने के टाइम पे. अगर ध्यान कहीं और है तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा कोर्ट से अगर आगे चल के कुछ नुकसान हुआ तो. And cautious while buying the goods. Cautious मतलब अलर्ट रहना, right? ये होता है caveat emptor. That means अगर आपने ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर ली, आप केयरफुल थे खरीदने के टाइम पे, पर फिर भी सेलर ने कुछ ऐसी चाल चली कि आप नुकसान में आ गए, फिर आपको वो अधिकार मिलेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे, implied conditions का. Then everybody will support you. If you go to consumer forum, if you go to court and all, they will support you because they may feel that you have done your responsibility. That is your caveat emptor. You are very careful. You have seen everything. You have confirmed everything, and then you have purchased. And later on, you found that the things whatever were told to you or the statements whatever were given to you are totally false. Then you are having the right. You can go to the court and you can ask for the justice, and your contract will be repudiated contract, and you will be getting the money back. That is the meaning of caveat emptor. I hope you have understood that. But many a times, the cases goes to the court where this caveat emptor does not arise. That means there are certain situations where caveat emptor is not playing any role, or it is not in existence, because there are certain things which are not in our control. कुछ ऐसी चीजें रहती है जहां पे हम केयरफुल रहना भी चाहे तो भी हम वो सारी चीजें नहीं कर पाते, तो उनको कहा जाता है, next slide, exceptions to caveat emptor. Exceptions means the things which are not under caveat emptor. Now what are these situations? The first situation is fitness for buyer's purpose. Now, when we talk about this particular term, fitness for buyer's purpose, that means we are talking about the specific choice of the customer. Fitness over here does not mean only the health fitness. Fitness is fit for all.
राइट। सो अगर मैं एक सेलर को अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस देता हूं, अपनी मेजरमेंट्स देता हूं कि मुझे जो चीजें चाहिए ये डिजाइन में चाहिए, उनका मेजरमेंट इतना होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, तो ये हो जाते हैं फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। तो एक बार जब मैं अपनी स्पेसिफिकेशंस सेलर को बता देता हूं, देन इट इज अ जॉब ऑफ द सेलर टू गिव मी दैट पर्टिकुलर गुड्स ओनली, राइट। और अगर उसने वो चीजें नहीं बनाई, उसने मुझे कुछ और ही बना के दे दिया जो अपनी कन्वीनियंस के साथ था, देन आई एम हैविंग द राइट, आई कैन गो टू द कोर्ट एंड आई कैन से दैट कि ये तो गलत बात हो गई। अब यहाँ पे मुझे केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे मुझे केयरफुल रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी। मुझे अगर मेरे घर के लिए फर्नीचर बनवाना है, तो मेरे घर का कंडीशन मुझे पता है ना, कि हम लोग कहाँ से वॉक करते हैं, कहाँ पे हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, कहाँ पे मुझे पढ़ने बैठना है, कहाँ पे मेरे बच्चों को पढ़ने बैठना है। तो मैं अकॉर्डिंगली उनको ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे सोफा होना चाहिए, यहाँ पे चेयर होनी चाहिए, यहाँ पे मुझे अपना पीसी रखना है, ऐसा करके मैंने स्पेसिफिकेशन दिया। और उनको बोला कि आप बना के घर पे आके फिट करके जाओ। पर उन्होंने तो अपनी मर्जी चला दी, उनको जैसा लगा उन्होंने टेबल वैसा बना दिया, सोफा वैसा बना दिया। तो आपको नहीं लगता कि मुझे पूरा अधिकार है कि वो चीजों को रिजेक्ट कर देना? 100% यस। मैं बार बार जाके उनकी दुकान में नहीं देखूंगा कि वो कैसे बना रहे हैं, कि इंच मैं मेजर करूंगा, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन, जब वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे अगर वो चीजें लेकर आ गया और बोलता है कि सर ये आपने बोला है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने लिख के दिया हुआ था, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अगर वो बोलेगा कि नहीं सर आप अभी ऐसा करेंगे ना तो हम कोर्ट में चले जाएंगे कि आप ना हमें पैसे नहीं दे रहे, तो बोलूंगा ठीक है जाओ कोर्ट में। तो कोर्ट में भी मुझे सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि मैं वहां पे बोलूंगा मैंने मेरे स्पेसिफिकेशन दिए थे, इन्होंने वैसा नहीं बनाया है, तो मैं क्यों उनको पैसे दे दूं? मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उसका नुकसान होता है तो होने दो, जज भी वही कहेगा होने दो तो होने दो, बिकॉज ही हैज नॉट फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। क्योंकि बार बार उसकी दुकान में जाके चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने स्पेसिफिकेशन दे दिया, वैसा होना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू convince you. That is a first exception. Then the second one is sale under trade name. Now this is something where many cases have come. Many a times we are purchasing the goods by listening the name of the brand or listening the name of the manufacturer or the seller. कई बार ऐसा होता है ना कि हम भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ये कंपनी का है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। दैट इज ट्रेड नेम। तो हम लोग बार बार उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने नहीं जाते हैं, वो पॉसिबल भी नहीं। एक बार एक पर्टिकुलर ट्रेडर का नाम हो गया कि ये ऐसी चीजें बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की रहती हैं, तो एक भरोसा बन जाता है कि ये चीजें अच्छी ही हो, राइट। सो व्हेन वी आर परचेजिंग एनीथिंग अंडर एनी ट्रेड नेम और अंडर एनी कॉपीराइट नेम और अंडर एनी पैटेंट, देन इन दैट केस it is not possible for the buyer to check the authenticity again and again. And if anything is happening wrong in future, then he can go to the court, he can ask for the justice, and even judge also will support, because it is not possible for each and every common man to check the authenticity of that particular brand. That is a second exception. Then the third exception is merchantable quality. As far as merchantable quality is concerned, merchantable quality means, something which has been shown to you, right? These are the things, and you are not going to confirm it again, because many a times that happens. I'm just giving you first one example, then the second example I'll give you. One example, let us say one particular company have given the advertisement that this particular washing powder or the cloth wash or the soap and all is having the ingredients that it will give you a fragrance of lime or chandan from your clothes. That means there is no need to apply fragrance of the perfume. Your clothes will give the automatic fragrance of that. ये करके उन्होंने क्लेम किया, एडवर्टाइजिंग दिखा दिया, आपने स्क्रीन पे ऐड देखा, आप बड़े आपको लगा कि अरे ये तो काफी अच्छा है, इसको यूज करना चाहिए। आपने वो प्रोडक्ट खरीदा और यूज किया, और उसके अंदर वैसा कुछ आपको नजर ही नहीं आया, इनफैक्ट कपड़े भी ठीक से नहीं धुल रहे हैं।
तो अभी आप कोर्ट में जा सकते हो और अपने पैसे वापस मांग सकते हो, यही है प्रोविजन। ओके, ये हो गई मर्चेंटेबल क्वालिटी, क्योंकि आपने टीवी में ऐड देखा। अब जैसे ही वो केस चल रहा है, अभी मैं दूसरे ट्रैक पे जा रहा हूँ, अभी मेरा ट्रैक चेंज हो रहा है। कोर्ट में बातें चल रही हैं, मैन्युफैक्चरर को भी बुलाया गया और आपने बताया कि ऐसा ऐसा, मतलब आपने खरीदा ये सोच के कि इस प्रोडक्ट में वो चीजें रहेंगी, पर इनफैक्ट वो तो चीजें नहीं थी, आपको तो नुकसान भी हो रहा है उस चीज से। मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स उसके अंदर यूज किए गए हैं जिसकी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए और आपने वो पहना तो आपकी स्किन भी खराब हो गई, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अभी डैमेजेस चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे बात चली। जज आपको देख के तरस खा जाएगा और मैन्युफैक्चरर को या जो भी प्रोड्यूसर रहेंगे उनको बुलाएगा और उनको पूछेगा कि ये सब कैसे हो गया। देन प्रोड्यूसर कहेगा कि सर हमने ऐड दिखाया बराबर, उसमें फ्रेग्रेंस है, लेकिन हमने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि इसके अंदर लाइम है। हमने तो वो इनफैक्ट नीचे ना एक बॉटम लाइन भी दिया हुआ था, एक नीचे बॉटम लाइन दिया हुआ था, वार्निंग करके हमने लिखा हुआ था दैट दिस प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ लाइम और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ चंदन एंड ऑल, बट दैट्स द केमिकल में। हमने वो बोला था, लिखा था, और ये कस्टमर को पढ़ना चाहिए था, भले वो तो स्मॉल वर्ड्स में लिखा था। अब जज पूछेगा कस्टमर्स को या आप गए कोर्ट में, तो आपने वो पढ़ा था क्या लाइन? आप बोलेंगे नहीं हमने तो वो नहीं पढ़ा, हमने तो देखा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है जिम्मेदारी आ जाती है, आपने केयरफुली नहीं देखा। कैविएट एम्प्टर का मीनिंग क्या रहता है? आपको बहुत ही केयरफुल रहना। आपने केयरफुली नहीं किया, आपने स्क्रीन पे ऐड देखा, बड़े खुश हो गए, ले लिया, अभी नुकसान हो गया तो आपको सफर करना है। ये हो गई एक सिचुएशन। अगर सपोज उन्होंने वो लाइन नहीं दिया, उन्होंने वो लाइन नहीं दिया, सिर्फ एक्सप्लेन किया था टीवी पे, देन दैट विल बी एक्सेप्शन, then that will be exceptional because we are not going to no confirm the authenticity of that. नेशनल टीवी पे अगर एक एड आ रही है तो वो 100% राइट ही होगी ना, तभी तो हम लोगों ने देखा है ना। तो वो बन जाएगा एक्सेप्शन अगर उन्होंने वो वार्निंग नहीं दिया था। लेकिन अगर उन्होंने वो वार्निंग दिया और आपने नहीं पढ़ा, तो आपकी गलती, राइट। तो इसके लिए उसको एक्सेप्शन में डाल दिया मर्चेंटेबल क्वालिटी को, क्योंकि हम लोग कई बार ना वो वार्निंग वगैरह नहीं रहता है उसके अंदर। कोई भी सेलर ये नहीं चाहता है कि लोग उसकी चीजें ना खरीदे, वो तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दिखाते हैं और कंजम्पशन बढ़ाना की करते हैं। दैट इज मर्चेंटेबल क्वालिटी। That means where advertisement, having the faith that this particular product will be containing that much quality, and you're purchasing the things. So that is not the called as the caveat emptor. That will be the exception to caveat emptor. यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। अगर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो पढ़ना जरूरी है, नहीं दिए हैं तो उनकी गलती, फिर वो एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारा थर्ड पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज यूसेज ऑफ ट्रेड। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड की बात करूंगा तो ट्रेड मतलब द थिंग्स व्हिच यू हैव परचेज्ड, राइट। जो सर्विसेज आपने खरीदी है या जो गुड्स आपने खरीदे हैं वो ट्रेड में आ जाता है। यूसेज, उसका इस्तेमाल। कई बार ऐसा होता है ना कि जो सेलर रहता है या जो मैन्युफैक्चरर रहता है उससे जानकारी रहती है कि ये प्रोडक्ट इस तरह से यूज करने पर नुकसान हो सकता है, उसे पता है। पर ये बात कस्टमर को नहीं पता, यूसेज के बारे में नहीं पता है। ना ही उन्होंने कहीं पे वो कॉन्शियस लिखे थे, या तो इंग्रेडिएंट्स में लिखा था तो वार्निंग लिखा हुआ था। स्पेशली मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, व्हेनेवर यू आर परचेजिंग, स्पेशली गर्ल्स जो भी कॉस्मेटिक्स आप लेते हो या यूज करते हो, अभी तो मैंने देखा कि बॉयज भी कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, तो उसके कंटेंट्स एक बार पढ़ लो, क्योंकि उसमें कई ऐसी चीजें रहेंगी जो शायद आपकी स्किन के लिए फेवरेबल नहीं होगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर परचेजिंग। यहाँ पे हम लोग यूसेज की बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि यूज करने के बाद वो चीजें नुकसान दे देती हैं। एक ऐसा केस हुआ था, हॉट वाटर बॉटल, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट। हॉट वाटर बॉटल, कभी मतलब मसल पेन होता है तो हम लोग गर्म पानी, उसमें एक बैग रहता है, उसको हॉट वाटर बॉटल बोलते हैं, वो बैग में डाल के सेक करते हैं ताकि थोड़ा सा फर्क पड़े। तो वो जो मटेरियल यूज होता है ना, वो इतना खास रहता है कि वो गर्म पानी उसको असर नहीं करता है। अदरवाइज हॉट वाटर इतना मतलब खतरनाक रहता है कि आपका जो मटेरियल रहेगा ना वो फट भी सकता है, बाहर आ सकता है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हॉट वाटर बॉटल था, हॉट वाटर बॉटल का काम क्या है कि उसमें गर्म पानी लोग डाल के उसका सेक करते हैं, दैट मीन्स वो गर्म पानी से खराब नहीं होगा, दैट इज अ यूसेज। लेकिन मैन्युफैक्चरर को पता था कि मटेरियल जो है अच्छा नहीं है, इसमें ज्यादा दिनों तक वो चलता नहीं है, ये थैली फट भी सकती है गर्म पानी अगर ज्यादा डाल दिया तो। और ऐसा हुआ भी था, गर्म पानी डाला और थैली फट गई थी, कस्टमर को स्किन पूरी जल गई थी, तो उसको डैमेजेस भर के दिए थे, उसका पूरा हॉस्पिटल का खर्चा एंड वो सब दिया था। ये होता है यूसेज ऑफ ट्रेड, क्योंकि एक बार अगर हॉट वाटर बॉटल खरीदेंगे तो पूछेंगे थोड़ी ना बार बार जाके कि सेलर को कि इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं ना, हंसेगा ना वो हमारे ऊपर। इसके लिए उसको एक्सेप्शन के केस में डाल दें, that there is no need for the customer to confirm about the usage of the particular trade, because that particular product has been made for that purpose only, तो वो पर्पस तो होगा ही ना, right? So that is called as usage of trade. So these are called as the exception to caveat emptor. मतलब यहाँ पे अगर हमने थोड़ी सी भी इग्नोरेंस दिखा भी दी कि यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, तो भी हमें जो राइट्स दिए गए हैं वो हम एंजॉय कर सकते हैं फॉर इम्प्लाइड कंडीशंस। Okay, so with this note, I just stop today's lecture, and in our next period, we are going to understand regarding transfer of property in goods under various situations.